Good evening, students. In the today's video, we are discussing the chemical properties of aryl halides. Correct? In the previous, we are discussing about the methods of preparation of alkyl halides as well as the physical properties of aryl halides. If we see, the aryl halides are less reactive toward the nucleophilic substitution reaction. It is the question of very short type of question. Why aryl halides are very less reactive towards nucleophilic substitution reaction? These are the reason. First, due to the resonance CX means carbon halogen bond has partial double bond character. What is the meaning of the partial double bond character? Okay, if we see the what is the resonance, if you see here, it is the benzene ring and it is any halogen bond. If you see chlorine, bromine or iodine, if we see chlorine, as we know that the outermost electron of the chlorine will be 7, 2, 4, 6 or 1 electron is consumed in the formation of bond. Correct? If we see there is a double bond, this electron is going to this carbon and this bond will be broken and give electron to this carbon. So that finally क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बेटा इस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव. ये क्या हो रहा है, डोनेट कर रहा है तो कौन सा, नेगेटिव. नाउ दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक इन. ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस. इसकी वजह से इसके पास कैसा आया, प्लस. ये प्लस और ये माइनस, ये क्या करेगा, कैंसिल आउट होगा ईच अदर. व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ये प्लस माइनस की वजह से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड. ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो माइनस, this is double bond and this bond will be breaking. Okay, now it is the electron density, much greater electron density of this carbon, so that the breakdown of carbon in this way, this bond will be breaking, so that they have minus plus form the new bond, and the situation is like to be, there is plus charge, it is carbon have the plus charge, the new bond will be break form this and there is the minus charge. Again there is double bond as usual, माइनस. इस पर अगर ये माइनस है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा, माइनस चार्ज. यहाँ पर क्या आएगा, प्लस. ये प्लस और माइनस न्यू बॉन्ड फॉर्म करेंगे और इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, माइनस. नाउ दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन, और अगर ये ब्रोकन होता है तो इनकी स्ट्रक्चर सेम. यहाँ न्यू बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया और इसका माइनस क्या हो गया, ब्रेक हो गया. इट इज़ क्लोरीन नॉट कार्बन, क्लोरीन Cl. करेक्ट. इफ़ यू सी द फर्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर डबल बॉन्ड है. अब इसकी बजाय यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर सिंगल. जहाँ पर सिंगल था वहाँ क्या आ गया, डबल. तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड. इट इज़ कॉल्ड एज, रेजोनेंस की वजह से क्या आया, डबल सिंगल. इट्स मीन दैट दे डू नॉट हैव द प्योर सिंगल, दे डू नॉट हैव द प्योर double bond, so that this bond is called as partial double bond. Correct. So it is the first region, that is the partial double bond, as you see. Second is stabilization of the molecule of the delocalization of pi electrons. pi electron का delocalization, पहले pi bond यहाँ था, अब यहाँ पर नहीं है. अगर आप फाइनल स्ट्रक्चर देखें अब यहाँ नहीं है. तो ये जो delocalization हुआ pi इलेक्ट्रॉन का, तीनों कार्बन के पास यहाँ पर डबल है, लेकिन लास्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल बेटा नहीं है, वहाँ सिंगल हो गया. तो इट इज़ कॉल्ड एज delocalization ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. और इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कार्बोकैटायन. इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ फेनिल ग्रुप, ये है हेलोजन. अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, दैट्स वाई दे कैरी माइनस. इसके पास क्या होगा, प्लस. एज यू नो दैट प्लस चार्ज है, as you know that plus charge means that deficiency of electron, double bond means deficiency of electron. ऑलरेडी इसके पास डेफिशिएंसी है कार्बन के पास, और हमने यहाँ पर जनरेट किया प्लस चार्ज. इट्स मीन दैट पहले से कमी है इलेक्ट्रॉन की और ज़्यादा कमी हो गई, सो दैट दिस फेनिल ग्रुप बिकम अनस्टेबल, so that it is not easy to break down this partial
partial double bond, correct? So that the reactivity of aryl halide are less as compared to alkyl halide. Is that clear? Okay. The next is, however, aryl halide have electron withdrawing group. As we know that electron, because they are most electronegative element like फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इन्हीं के साथ ये बिहेव इसकी तरह करते हैं NO2 और SO3H की तरह. बट दीज आर द ऑर्थोपैरा पोजिशंस. ऑर्थोपैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है ये बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं. वाई वी कैन से दे कैन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हम 11th में भी डिस्कस कर चुके थे. माइनस चार्ज कैरी कर रहा है बेटा, माइनस चार्ज किस पोजीशन पर, या तो ऑर्थो पर, या पैरा पर, या ऑर्थो. दैट्स वाई इन द सेम वे कि these can increase the electron density at the orthopara position, that wise these are the orthopara director. करेक्ट. NOH के साथ रिएक्शन कराए क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन विद NOH डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका Na इसका Cl बाहर निकला, दिस OH इज रिप्लेस टू Cl एंड फॉर्म द फिनॉल. दीज आर द सेकेंड टाइप ऑफ द रिएक्शन. It is called as electrophilic substitution reaction, and these 5 type of reaction we see in the class 11th also, correct? It is orthopara director. यहाँ पर Cl को कहाँ पर लगाएगा, या तो बेटा लगाएगा ऑर्थो पर या लगाएगा पैरा पर. इन दिस वे ये यहाँ पर लगा दिया ऑर्थो पर और ये लगा दिया कहाँ पर, पैरा पर. पैरा इज मेजर. वाई? एनीबडी? इट इज पैरा इज मेजर बिकॉज कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों की क्या है बेटा, दूर दूर हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा. इन दिस केस इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके बीच में होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बॉन्ड के बीच में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन सेम चार्ज, और सर का इलेक्ट्रोस्टैटिक भी चल रहा होगा. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर. तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज अगर पास पास होंगे तो दे कैन बी repel to each other. That's why it becomes less stable as compared to the para position. It is a nitration. Nitration की रिएक्टिव स्पीसीज क्या होती थी, NO2. NO2 को एक बार आप ऑर्थो पर लगा दीजिए, एक बार किस पर लगा दीजिए, पैरा पर लगा दीजिए. पैरा इज मेजर. सल्फोनेशन SO3H एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, पैरा वाला मेजर. इन द सेम वे इट इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. कौन सा ग्रुप लगेगा, एल्किल ग्रुप, दैट इज द CH3. एक बार कहाँ पर, ऑर्थो पर, एक बार कहाँ पर, पैरा पर. और लास्ट रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेटा हम ऐड कराते हैं CH3COL. इसका नाम होता है एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड में COCl बॉन्ड ब्रेक होता है. कौन सा बॉन्ड, CH3COCl. इफ यू सी इट इज द एसिड क्लोराइड, दैट इज CH3COCl. हम बॉन्ड कौन सा ब्रेक करते हैं, दिस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और क्लोरीन में किसकी ज़्यादा, क्लोरीन. तो क्लोरीन पर चार्ज माइनस, इस पर चार्ज प्लस. और यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर बेटा, ऑर्थो पोजीशन पर. और तो ये प्लस चार्ज किसके ऊपर है बेटा, कार्बन के ऊपर. तो अटैच क्या होगा, कार्बन ही. तो इफ़ यू सी यहाँ पर क्या लगाया, अटैच कौन हुआ है, कार्बन. COCH3 पैरा, और ये COCH3 कौन सा बेटा, ऑर्थो पर. करेक्ट. ये कट गया है, मिस हो गया है. You can understand there is also group is COCH3. So it is the property of aryl halides. Any property of aryl halides it is called as electrophilic substitution. Same as we discussed like the chemical property of benzene, toluene, correct. In the same way, if we see next reaction, that is the reaction of metal. It is the Wurtz-Fittig reaction. The name of the reaction you hear that it is Wurtz reaction. Wurtz reaction में क्या, Wurtz reaction में दो होते थे alkyl halide, उसकी रिएक्शन हम 2 सोडियम से कराते थे. If one alkyl halide is converted into the aryl halide, यहाँ बस CH3 या किसी भी alkyl ग्रुप के प्लेस पर अगर हमने C6H5 लिया, तो इस एक के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कौन सा, फिटिग. तो एक तो ऑलरेडी यही प्रेजेंट है, दैट्स वाई वी यूज द वर्ड वुड्स. इसके लिए हम वर्ड क्या लेकर आते हैं, फिटिग. तो इट इज़ कॉल्ड एज वुड्स फिटिग रिएक्शन. तो रिएक्शन को सेम मैनर में आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं. व्हेन द एरिल हैलाइड मीन्स यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड कह सकते हैं. व्हेन द एरिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद द एल्किल ब्रोमाइड विद द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ये टोटल बाहर, 2NaBr बाहर,
और इस बेंजीन ग्रुप पर क्या लगेगा CH3, इट इज़ कॉल्ड एज टॉल्यूइन, और ये निकल गया NaBr. दिस इज रिएक्शन विच इज़ ऑल्सो वी सी इन क्लास 11th हाइड्रोकार्बन, वो भी कौन सा, एरोमेटिक, करेक्ट. नेक्स्ट इज फिटिक रिएक्शन. इससे अब नाम बेटा वुड्स भी हटा दिया, ओनली द फिटिक रिएक्शन. इट्स मीन दैट दोनों तरफ क्या होगा बेटा, एरिल पार्ट एरोमेटिक वाले ही होंगे दोनों साइड, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है, और इट इज कॉल्ड एज डाईफेनिल. इट इज कॉल्ड एज डाई, एक फेनिल ग्रुप ये, एक फेनिल ग्रुप ये, इट इज कॉल्ड एज डाईफेनिल और बाईफेनिल. NaCl बाहर. नेक्स्ट रिएक्शन इज अल्मान रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज नॉट, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, लिखना रहेगा, बट इट इज मे बी इट इज नॉट प्रेजेंट इन द NCERT. इन द सेम वे फिक्स है, इसमें कॉपर लिया जाता है. व्हेन आइडो एल्केन इज रिएक्ट विद कॉपर मेटल, वहाँ कौन सी मेटल थी बेटा, सोडियम. किस में, चाहे वुड्स फिटिक हो या फिटिक हो, उसमें कौन सी मेटल, सोडियम मेटल. यहाँ कौन सी, कॉपर. रिएक्शन सेम वे में, पूरा ये बाहर और ये फेनिल आपस में मैच किया, इट इज़ कॉल्ड एज बाईफेनिल, और कॉपर आयोडाइड बाहर, करेक्ट. व्हेन आयोडोबेंजीन ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर यील्ड बाईफेनिल, करेक्ट. So it is a small part, that is the properties of the what, aryl halides, and it is completed in the simple way. And the next topic, as you see here, it is the polyhalogen compounds, which we discuss in the next class, next video, I mean that. So take care, stay in your home and see video and learn properly, and to get ready for the exercise, because I think there are not much lecture or remains, only one video will be remains of this chapter, and this chapter will be completed. After that we discuss the questions of this chapter. So get ready, and you revised the previous videos also, correct? Okay, thank you.